ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस चलिए, फ्री टाइम हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। सब लोग रेडी हैं? यस चलिए स्टार्ट। बहुत लंबी ब्रीथ लेनी है आप, तभी आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक है, बहुत लंबी ब्रीथ लेनी है आप। ओके Okay, children, you might be. हेलो। Yes, ma'am. Now, ma'am, I am taking. Okay. Listen, children. Today, you might be thinking why I am here, and why all the classes of class 6, 7th, and 8th is combined. Children, from so many days we are doing this assembly, this attendance period, and in that period you all are doing Gayatri Mantra 3 times. Yes, you all are doing Yes, sir. Gayatri Mantra, and earlier also during the school time, that time also we used to do the Gayatri Mantra. Earlier, from so many days we are doing. Now the question arises ki why we are doing this. What is the reason behind that we are doing a Gayatri Mantra 3 times, and what are the benefits for that, and why we are doing it? So I thought you all should know the reason why we are doing, what are the benefits by which doing this Gayatri Mantra we will be benefited, and what are the basic things due to which the school is doing these all. Lots of school is doing Gayatri Mantra. In your during your puja also, during your maybe your mother, father, grandfather, grandmother, everyone does this. Why do we do this? So for that one, there is information for you, what we can say, that I would like to share with you, and for that I am going to a screen share, so you all go with that. I am doing a screen share right now. Yes, children. Children, this is the Gayatri Mantra, which actually it is a mantra which we does as a prayer. You all today also I have seen that it is not in proper chorus. You all are, everyone is speaking in his language and his in that way, this way. आगे पीछे कहीं से भी आप कर. So children, I think my this screen share is visible to everyone. Yes, sir. Yes. So you Yes, all sir. know what is the Gayatri Yes, Mantra. Yes, sir. I would request everyone that you all should keep your mic off. Mute your mic first. Okay, children? Please mute your mic first. Okay. Now, thing is that this Gayatri Mantra we does the actual pronunciation that you should follow, as well as what is the actual meaning of that. You all chant this prayer, this mantra every day,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Listen, this is a very important mantra which I would like to speak to you all. Actually, children, this mantra is dedicated to God's Son. This mantra which we are chanting every day, in earlier sense it is actually dedicated to God's Son, because God's Son is the first God which had been started to be worshipped by the mankind. ओके मैम, अगर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही होगी तो आप हमको एक बार जरूर बता दें. नहीं सर, दिख रही है. ओके, सो सबसे पहले जो ये मंत्रा जो लिखी गई थी वो ऋग्वेद में लिखी गई थी बच्चों. ओके, ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं. इन सभी वेदों में से ये जो मंत्रा है वो वहीं से पहली बार निकाली गई है. ऋग्वेद में ये सूर्य भगवान के लिए लिखी गई थी, और सूर्य भगवान वो पहले कह सकते हैं कि साक्षात देवता हैं जो कि मैनकाइंड ने सबसे पहले इसकी वर्शिप करना स्टार्ट किया. However, this mantra is personalized with गायत्री माता. आप लोगों को शायद पता हो, तो गायत्री माता को ही पर्सनलाइज करके पर्सनिफाइड किया गया है. और गायत्री माता एक्चुअली में शी इज द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस सरस्वती. तो गायत्री माता एक्चुअली में किसकी इनकारनेशन है? गॉडेस सरस्वती. और गॉडेस सरस्वती आप जानते हैं कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट. So this Gayatri Mata is actually having 5 faces and called as the mother of Vedas. गायत्री माता को हम लोग मदर ऑफ वेदास कहते हैं, वेद्स कहते हैं. In English we call it Vedas, but actually it is Ved in Hindi. So ये जो गायत्री माता है जिनकी हम उपासना करते हैं, by this mantra is actually the mother of all type of Veds, and that's why she has 5 faces. And this mantra starts with Om, which itself means the complete Pran. So Om is having a specific type of sound vibration. If we look into the science genre, we will understand that Om, has been proved by the different type of researches that this is a very important sound vibration which creates a very good effect in your body. Now, the first 3 letters, Bhur Bhuva Swah, these 3 letters is actually having a different type of meaning. A basic meaning, Bhur means जमीन या अर्थ, भुव आसमान, स्व that means स्वर्ग. Similarly, भूर भुव स्व also means भूर past, भुव present, and swa that means forward, that is future. So what is the meaning of this mantra which we are doing? In English it is like that. It lets my mind and the whole existence be illuminated and purified by your radiance. Whose radiance? The Almighty radiance. So first 5 letters after Om is actually what we can say, we are praising our God. In Hindi it goes like this: Pran Swarup. Why Pran Swarup? Because it is the Almighty who gives us Pran. Dukh Nasak. देवता ही है जो हमारा दुख को नाश करते हैं. सुख स्वरूप, जिनको देखने से ही सुख की अनुभूति हो. श्रेष्ठ, is the supreme
पावर, तेजस्वी, पाप नाशक, द्वेष स्वरूप. These are the points, these are the words which is actually the, we can say, उनकी जो ऑलमाइटी हैं उनके तारीफ में कही गई. परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें. ये जो परमात्मा है जिनकी ये सभी खूबियां हैं उनको हम अंतःकरण में धारण करें और वो हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें. सन्मार्ग क्या हुआ? द राइट पाथ. और जब वो राइट पाथ में हम जाएंगे तो 100% आपका जो ब्रेन है, आपका जो इंटेलेक्ट है, दैट विल मूव इन ए वेरी गुड डायरेक्शन एंड इट विल मूव टू अ बेटर वर्ल्ड. सो ये गायत्री मंत्र एक्चुअली हमें क्या बताता है? हमें ये बोलता है कि ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर हमें सन्मार्ग की ओर ले जाइए, हमें अच्छे फॉर्मेट में ले जाइए, हमें सही कामों में ले जाइए और हम सही करें. और जब आप सही करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ओवरऑल पूरी चीजें डेवलप होती. दैट्स व्हाई आपको पता होगा ये जो गायत्री मंत्र है, अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए, ये जो गायत्री मंत्र है ये एक्चुअली में साइंटिफिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है. दैट्स व्हाई समटाइम earlier it was denoted that it should not be chanted by normal people. ये इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि इसको नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल को नहीं चांट करना चाहिए. लेकिन लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि कॉमन पीपल को भी जरूर चांट करना चाहिए. इससे बहुत प्रकार के फायदे हैं. तो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि गायत्री मंत्र पहले कहां पर आया था? ऋग्वेद में आया था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपकी जानकारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट. लेकिन ये ऋग्वेद में ही था और ऋग्वेद सभी कॉमन पीपल, जो नॉर्मल पीपल है, वो नहीं पढ़ते हैं. तो उसको सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने इनको पूरे लोगों में स्प्रेड किया. कितने लोग जानते हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को? विश्वामित्र के बारे में नाम सुना है? अभी कुछ दिन पहले रामायण आ रहा था, अगर आप लोग को पता हो तो. विश्वामित्र भगवान राम जी के गुरु जी. यस सर. यस. तो विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु थे और उन्होंने सबसे पहले इसको पॉपुलराइज किया. ऋग्वेद में था, ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो उसको चांट किया करते थे, कॉमन पीपल नहीं करते थे. ये सिर्फ तांत्रिक अनुष्ठान, बहुत तंत्र जहां पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वो सिर्फ वहां होते थे क्योंकि ये ऋग्वेद में था. बाद में चल करके रामायण के समय में, या कहें विश्वामित्र जी ने इसको कॉमन पीपल को लिए अवेलेबल कराया और इसलिए ये मंत्र एक प्रेयर के फॉर्म में डेवलप हुआ. लेकिन हाँ, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको बहुत सही फॉर्मेट में, सही तरीके से, सही उच्चारण के साथ और बिल्कुल शुद्ध रूप से गाया जाए, या इसका भजन किया जाए, या मंत्र का चांट किया जाए. यू शुड चांट दिस मंत्र इन ए वेरी प्रॉपर वे एंड देन इट विल गिव यू द बेनिफिट्स. Children, this mantra was used or is used right now also in different type of different purposes and different type of अनुष्ठान, different type of पूजा. आपको बताएं, जो उपनयन संस्कार होता है उसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, इसी मंत्रा से शुरुआत होती है. और ये कई जगह फिर बाद में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा गया है. आपको बता दें, भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है. तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? ये इतना इम्पोर्टेंट मंत्र क्यों हो गया? उसका बहुत बड़ा रीजन था कि इसके बहुत सारे बेनिफिट. और अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग इसको इस पीरियड में क्यों इंक्लूड किए? Why we chant गायत्री मंत्र every day in this assembly period? ये भी एक क्वेश्चन है. आपके मन में आता होगा कि सर लोग, मैडम लोग, सब लोग सुबह सुबह पता नहीं ये मंत्र क्या क्यों उच्चारण कराते हैं.
Yes, you want to speak anything, Ujjwal? Sir, I know. Yes. Acha, let me speak, then you will speak. Okay. Okay. So why we chant every day in assembly period? Sir, the question, the answer is very simple. Children, this is a very important mantra which we use, and that also in this pandemic time when we are very much, everyone is very much having problem. अभी स्थिति ये है बेटा कि हर एक घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और आप सभी लोग अभी अपने अपने घर में सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। तो ये एक ऐसा मंत्र था बेटा जो कोविड जो कह सकते हैं कि पूरे समय यूटिलाइज होना चाहिए, पूरे समय इसकी चैंटिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा, इसलिए ये एक कलेक्टिव मंत्र है, ये प्रेयर भी है और मंत्र भी है और कई सारे वैदिक ट्रेडिशन में होता है। तो इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वेदों में लिखा गया है कि ये हर एक समय टाइम के अनुसार अगर आप इसकी मंत्र का उच्चारण करते हैं और नंबर्स के अनुसार तो इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे एकदम सुबह में अगर आप करते हैं जो 8 बजे तक का समय है, अगर उस समय करते हैं तो उसको हम लोग सात्विक टाइम करते हैं। योर ब्रेन विल बी गोइंग टुवर्ड द स्पिरिचुअल थिंग। दिन में करते हैं तो उसको राजसी टाइम करते हैं। कहने का मतलब आप जब इसको करेंगे तो मेटेरियलिस्टिक चीजों का फायदा होगा, दिन में करेंगे, और रात में करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है, तामसिक फायदा होगा जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं और इसीलिए रात के समय में नहीं करना चाहिए। ऐसे भी गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है तो उजाले के टाइम में ही करना चाहिए जब सूर्य भगवान रहे। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो जब सामने साक्षात हैं तो वो जब रहे तो ही पूजा करनी चाहिए, तभी हमको मंत्र पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए दिन में, और खास करके उस समय जिस समय या तो सूरज उग रहा हो या सूरज का भगवान सूर्य अस्त हो रहे हो, तब इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाई वी आर डूइंग, क्यों हम ये कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ मंत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए। पहला चीज, इट इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन। ठीक, आपके क्लास से पहले ये मंत्र का उच्चारण आप करते हैं, इट इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन। इसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, ब्रेन कंसंट्रेट होगा, यू विल परसीव मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम योर टीचर, यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स विच यू आर स्टडीइंग। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। You will be focused with your studies, and when you are focused with your study, more and more knowledge you will be able to gather. Another thing, a tool for spiritual awakening. You will be able to connect with the God. आप जिस भी God को मानते हैं, आप जिस भी देवता को मानते हैं, आप उसका ध्यान करके आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये हमेशा आपको उस परम पिता परमेश्वर की ओर ले जाएगा और आपको बहुत ज्यादा अगले समय बात कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक देगा। आज के समय में जबकि पेंडेमिक में इतनी बुरी हालत है, बेटा बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहें। If you are positive enough, you will be not caught by this corona or COVID-19. Or maybe someone is स्टक बाय दिस कोरोना। अगर कोरोना उसको हो भी गया है तो उसको पॉजिटिव बना रहना है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा अभी आपके बॉडी में पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव वाइब गिव यू अ ग्रेट फाइटिंग एटीट्यूड विद दिस कोरोना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा सेफ हैं कोरोना से विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज नेगेटिव। And that's why when you are having a positive mind, you are having a spiritual awakening, improve your concentration has been improved, 100% it will give you peace of mind. Shanti milegi, you will be happy. These all things, when you will be happy, you will be not caught by any type of disease and you will be not having any type of problem, then your
इम्यूनिटी विल 100% डेवलप। इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी, और जब इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी इम्यूनिटी का कितना इंपॉर्टेंस है। बेटा इस प्रकार के हजारों फायदे हैं। अगर हमने गायत्री मंत्र का फायदा गिनाने बैठ गए तो आज और कल भी और पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। बेटा इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आंख बंद हो और बहुत ध्यान से, बहुत मन के साथ, बहुत डिवोशन के साथ आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अनदर पॉइंट, एक नॉर्मल पॉइंट्स आपको बताना है। गायत्री मंत्र इज मेड अप ऑफ 24 सिलेबल। ठीक, जब आप बोलते हैं तो 24 प्रकार के लेटर्स एक्चुअली आपके मुंह से निकलते हैं, 24 लेटर। और आपको हम बताएं जिसको हम लोग सिलेबल बोलते हैं, साउंड के फॉर्मेट में 24 सिलेबल निकलते हैं। ओ, बूर, ऐसे करके जब आप इसको तोड़ेंगे तो 24 लेटर, 24 सिलेबल निकलते हैं। और आपको बताएं कि 24 ही हड्डियां हैं आपके, वर्टिब्रल है आपके बैकबोन में। ये बैकबोन आपको क्या करता है? आपकी बॉडी को खड़े होने में या नॉर्मल फॉर्म में स्टेबलाइज करता है। जैसे ये 24 हड्डियां आपको खड़े रहने में, आपको स्टैंड करने में स्टेबलाइज करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये 24 लेटर आपकी पूरी माइंड को, पूरे बॉडी को और पूरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को स्टेबलाइज करता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 24 सिलेबल, 24 वर्टिब्रल एंड बोथ स्टेबलाइज योरसेल्फ। So it gives you an intellect, it improves your intellect. Okay, children? So number of, we can say the benefits is there. We could go beyond that. Now thing is that कि ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बातें हमने बोली, या इसका कुछ साइंटिफिक फैक्ट भी है, कुछ साइंटिफिक बेस भी। तो चिल्ड्रन, इट वाज फर्स्ट in 1998 एम्स हैड स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों को लिया, उन लोगों को खूब सारा गायत्री मंत्र बोलने हर दिन के लिए ट्राई किया, और उसके बाद उनके ब्रेन को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का रेगुलर उच्चारण किया था, उनका प्री फ्रंटल लोब, आगे वाला जो ब्रेन, जो डिसीजन बनाता लेने में हेल्प करता है, जो आपको सोच को डिफाइन करता है, आपको क्या करना है, आपको आगे चल करके क्या बनना है, किसी चीज का क्या डिसीजन लेना है, दिमाग आपको, बॉडी को कितना मेंटेन रखना है, ये पूरी चीजें जो है प्री फ्रंटल लोब, जो आगे का ब्रेन होता है, फ्रंट ब्रेन, वो कमांड करता है। और जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का रेगुलर उच्चारण किया, रेगुलर मंत्र का जाप किया, उनका ये प्री फ्रंटल लोब जो है ये बहुत इंप्रूव हुआ। इट वाज प्रूव्ड बाय द MRI स्कैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। MRI स्कैन जब निकाला गया तो ये देखा गया कि ये बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर हार्वर्ड स्टेंगलिल थे अमेरिका के, उन्होंने बोला कि जब ये साउंड वेव को रिसर्च किया तो ये पाया कि उनको लगभग 1,10,000 types of sound waves was produced, and that sound waves creates a great amount of energy in the body, and that's why this mantra is also called as the strongest mantra of our Sanatan Dharma. इस सनातन धर्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्रा में से ये मंत्रा पाया गया। तो चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी गुड मंत्रा और प्रेयर, वी शुड ऑलवेज गो फॉर दैट। देयर इज ऑलवेज कॉल्ड मनना मंत्र, मनना त्रायत्र मंत्र। मतलब जितनी बार व्हेन यू थिंक रिपीटेडली, इट विल लिबरेट योर माइंड। मंत्रा का मतलब क्या होता है? मनना त्रायत्र त्रिमंत्रा, मतलब कि व्हेन यू थिंक रिपीटेडली इट विल लिबरेट योर माइंड। आपके माइंड को खुलेगा, ब्रेन को पूरी तरह से दुनिया की ओर प्रसार करेगा और अच्छी चीजों की तरफ बढ़ाएगा।
और कभी कभी जो गायत्री मंत्र है उसके बारे में बोला था, गायंतम गायत्री, वन हु चांट इट लिबरेट्स योर माइंड. So this Gayatri mantra, that's why it is very important mantra. This is this small thing which I was trying to give you all. So children, this is a very important thing which I would like to share with you all. I think I have taken more time. After some time, so actually your time for your next class is also started.